Okay, so now welcome to episode number 2, and we have already covered these two things, that is period of gestation concept done, fetal age done. Now we're going to talk about how to calculate expected delivery date, and I think that is the most important step. Once you're done with that, good to know. Now, for example, we are going to proceed with expected delivery date. I have already told you we're going to start with first day of LMP, that is your last menstrual period. Uska jo pehla din hota hai. For that, please refer to episode number 1 if you haven't watched it for the concept building. Now, for the expected delivery date, you have to understand that there are basically two ways. The first way is your natural way, depends on an IVF. Somebody have gone through natural procedure, natural conception. Usme alag-alag scenarios I'm going to tell you and how to calculate the expected delivery date. And then I'm going to go for the IVF method. If somebody have gone for IVF, which cycle pe unhone day 3 pe karwaya, day 9 pe karwaya, I'm going to tell everything about it. So let's move forward. For example, expected delivery date, pehla concept to clear hai that we have to calculate it from the first day of LMP. Why? Because at the end of the day, it is the time we take from which she is pregnant, not from the day of fertilization or day of ovulation. One thing to be done. Pehla scenario we have right now in front of us is natural. That means we have to assume in case number 1, if the MCQ says that the cycle, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा मतलब कि conditions are ideal. Natural conception हुआ है, point number 1. Point number 2, रेगुलर साइकिल्स है. दैट मीन्स द साइकिल्स आर वर्थ 28 डेज. ठीक है, 28 डेज की साइकिल्स है. और या तो ये मेंशन होगा एमसीक्यूज में, या तो मेंशन होगा कि कुछ में मेंशन नहीं होगा. डायरेक्ट आपको एलएमपी दिया हुआ होगा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट के व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. इफ दिस कंडीशन अपीयर्स, यू आर गोना अप्लाई योर न्यू रूल दैट इज नोन एज योर नीगल्स रूल. नीगल्स रूल क्या कहता है, यहाँ पे लिख लूँ मैं, नीगल्स whatever the spelling rule. This rule को अच्छे से बताने के लिए ना, let's go towards our book and please refer to this context, understand this concept. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेगुलर डेज बोला है, ये आइडियल कंडीशन है, इतना सुधरा हुआ इंसान कोई नहीं होता. उस कंडीशन में यू हैव टू ऐड फर्स्ट डे ऑफ LMP में. मैंने कहा था नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, या तो 40 वीक्स या 280 डेज या तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज. सो फर्स्ट डे ऑफ LMP में यू आर गोना ऐड 7 डेज प्लस 9 मंथ्स. ठीक है, दैट इज इट. सो ये आपके पास नॉर्मल की बात आ गई. यहाँ पे ट्विस्ट है. अगर फॉर एग्जाम्पल ट्विस्ट ये यहाँ पे आ रहा है कि डिपेंड्स ऑन के MCQ में दिया क्या हुआ है. इफ फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि जनवरी या कोई भी मंथ में LMP दिया हुआ है, व्हाट यूल हैव टू ऐड, दिस इज अ ट्रिक आई एम गोना टेल यू. प्लीज ऐड डेज 7 डेज फर्स्ट और फिर उसके बाद 9 मंथ्स ऐड करो, तो आप लोग का आंसर सही आएगा. यू कैन ट्राई इट. आई एम गोना टेल यू दी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ओवर है. यू कैन ट्राई इट आउट हियर. ठीक है, सेकेंड यू आर गोना सेज, अगर क्वेश्चन में द क्वेश्चन सेज कोई LMP की डेट इन फेब्रुअरी, then February you have to add 9 months first और उसमें 7 days बाद में ऐड करना है. Let me give you an example over here. Okay, so let's take these examples as practice, and please you can stop the video right here, calculate your own way. And already I've told you, जब सारी situations are normal, please add whenever the LMP is another month except February, add days first, उसके बाद months. And अगर February में दिया हुआ है तो add month first then days. So let's practice it out over here. If you already know how to do it, write down the answers in the comment section and then re-release the video, and then you can see what the answers are right. 27 December 2023 में we are gonna first add what days. So अगर मैं इसमें 7 days add करूँ, December is the 7th day, 31st month, right? So it's gonna be my 3rd of January. Please do not remember to change the month. 3rd December मत लिख देना, 3rd January जल्दी में. ठीक है, after 3rd January, अब February, March, April, May, June, July, August, September, October. So it's gonna be my 3rd October 2024. Please do not forget to remember change the year also. This should be your answer. For example, in February, if I'm talking about, you have to add months first. So 25th Feb में अगर मैं 9 months add करूँ, March, April, May, June, July, August, September, October, November. It's gonna be 25th November 2024. अगर अभी मैंने days add नहीं किए, plus 7 days. Add the 7 days here, guys. So it's gonna be again 30 वाला month है ये. ठीक है. So we are gonna add how much? It's gonna be my 2nd Jan. I hope so. 2nd December, right? I hope so.
2024. Am I clear with you people? So this is the scenario. So now, if the case was very simple, case number 1 already discussed with you, that अगर आपके पास इंसान आइडियल सिचुएशन में आया या कुछ भी एमसीक्यूज में मेंशन नहीं था तो आप नीडल्स रूल अप्लाई करोगे. If the situation appears over here that cycle length is not regular but cycle length की बताई हुई है कि that patient have a long cycle, for example 32 days की cycle है. That means if for example the cycle length is greater than 28 days जो ideal situation से है, we are gonna calculate in the same way जैसे हमने पहले किया था. But हम क्या करेंगे, जितनी भी डेज ऑफ साइकिल लेंथ बताई होगी हम माइनस करेंगे 28 को और वो एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे क्योंकि उसकी लंबी साइकिल है. हम जो भी डेट बनेगी फाइनल हमारे पास रिजल्ट की, हम उसमें ऐड कर देंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. फॉर एग्जांपल अगर 32 डेज की साइकिल है पेशेंट की तो नॉर्मल जैसे हम नीडल्स रूल अप्लाई करे थे वैसे करेंगे. उसके बाद साइकिल लेंथ 32 माइनस 28 डेज जो नॉर्मल साइकिल लेंथ होनी चाहिए थी इज इक्वल्स टू 4 डेज आ जाएंगे. 4 डेज हम प्लस कर देंगे हमारी जो भी डिलीवरी डेट होगी. If for example the cycle length is lesser, ठीक है, for example the cycle length is 20 days but regular है, that means every month she is having her cycle in 20 days में. तो what we are going to do is हम अगर 28 में से 20 माइनस करेंगे 10 बचेगा, हम वो माइनस कर देंगे. ठीक है, we are going to subtract the date from the EDD जो हमने नीगल्स रूल अप्लाई करके हुए बनाई थी. Those situations I have already covered. 2 cases. Now the most important thing that comes in the MCQ is that I cannot calculate my expected date of delivery for my patient if she have the following 4 conditions and she's coming with me. Now listen to me before I show you the text. पहली चीज, अगर for example and this have been the MCQ, please mind that this have been the MCQ in recent MCQ exam NEET PG में, that there was this patient, they were on contraceptive pills. She was eating daily the contraceptive pills and but अचानक से she got pregnant. So that is a contraceptive failure. Now please, but her cycles were regular 28 days. So they are tempting you कि भाई conditions सारी normal थी, LMP बढ़िया थी. You have to identify what is the EDD, what is the expected date of delivery. Now because you have marked up the Needles rule, you have marked up कि अच्छा डॉक्टर सिमरन ने पढ़ाया था, Needles rule पढ़ाया था, हमें नॉर्मल पता था, LMP बोला था केस 1 कि LMP नॉर्मल होगी, साइकिल नॉर्मल होगी, हम फौरन से EDD कैलकुलेट कर लेंगे. नहीं, if she have pregnancy because of the failure of contraceptive pills, case number 1. If she has a history of PCOS, because उसमें भी साइकिल्स रेगुलर नहीं होती, if it is mentioned कि कभी उसको 32 साइकिल है, कभी उसकी 30 साइकिल है, कभी उसकी 28 डे की साइकिल है, कभी उसकी 20 साइकिल, दैट मीन्स द साइकिल्स आर नॉट नॉर्मल. तो आप बार बार सब्सट्रैक्ट और प्लस तो नहीं करते जाओगे ना ऐसे. फोर्थ कंडीशन, इफ शी हैव जस्ट गिवन बर्थ टू हर बेबी एंड नाउ शी फीड्स दैट बेबी बट वो लैक्टेशनल एमेनोरिया में है, दैट मीन्स इवन अभी उनको पीरियड्स भी नहीं है. So in these conditions the Needles rule is not applicable. For that condition हम जैसे भी अगर MCQ में भले आपको बोला गया हो कि the cycles are regular but she is on whatever contraceptive pills or whatever, so in that conditions you have to identify the expected delivery date and the gestational age and the fetal age by using the ultrasound. And for that purpose it is known as crown rump length on ultrasound. That means जो fetal pole appear होता है, I'll be telling you into my ultrasound findings वाली वीडियो में कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो एंड कैसे कैलकुलेट करते हो क्राउन रम्प लेंथ में. For first trimester the best method is gonna be my crown rump length in these stupid conditions where I'm not allowed to apply my Needles rule. Now this was my natural method. If for example somebody have the birth or somebody have got pregnant in my natural way, this was that expected delivery date in natural done. Now in IVF I'm going to talk about. IVF में क्या होता है, please understand the concept over here. Please understand, यहाँ पे एक दफ़ा concept समझ लो. IVF means मैं क्या करने वाली हूँ IVF में कि मैंने normally IVF की 2 situations होती हैं. एक situation होती है that the couple came to me and for example for whatever reason they do not have a chance of having a normal pregnancy and now they want to get pregnant. So what I do is कि day of ovulation, ये जो day है ना, day of ovulation मुझे पता है कि it's gonna be the day of fertilization, so why not मैं natural को mimic करूँ. मैं day of ovulation पे female का secondary oocyte निकालती हूँ बाहर artificial method से. बाहर मैं स्पर्म के साथ उसको आर्टिकुलेट करवाती हूँ, फर्टिलाइज करवाती हूँ और डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डे ऑफ ओव्यूलेशन को सेम रखते हुए what I do is कि I put it back into the female's body and let her be pregnant from the same day. That means जैसे natural cycle चल रहा था वैसे ही मैं cycle को continue करवाऊंगी. This is gonna be
my choice. Okay, for example, if couple wants to get pregnant immediately, so for that purpose, day of fertilization, day of ovulation के बराबर हो जाएगा, that is day of 14th of cycle, and day of oocyte retrieval मतलब जिस दिन मैंने oocyte निकाला उसी दिन मैंने zygote fertilize करवा के oocyte fertilize करवा के zygote बना के अंदर भी डाल दिया था, तो मेरा नेचुरल के साथ मिमिक करेगा वो. तो दैट मीन्स उस टाइम पे जैसे मुझे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के लिए फर्स्ट डे ऑफ LMP रिक्वायरमेंट थी, तो फॉर दैट सिनेरियो जब पेशेंट को इमीडिएटली मैंने प्रेग्नेंट करवा दिया था, तो आई नीड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कि मुझे डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ oocyte रिट्रीवल चाहिए कि किस दिन मैंने oocyte निकाला था. व्हाट आई डिड, मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे नीडल्स पर अप्लाई नहीं होगा, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज व्हाट इज द डेट ऑफ प्रेगनेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ डिलीवरी. वी ऑल नो इट्स 9 months 7 days या 280 days या 40 weeks, ऐसा ही है. तो हम यहाँ पे डेज के साथ खेलेंगे. हम यहाँ पे 260 days प्लस करेंगे विद द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिकॉज आई नो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गोना बी माई डे 14. 266 days क्यों ऐड करूँगी मैं, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम होता है 280. मुझे पता है कि प्रेगनेंसी का टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने नेचुरल को मिमिक किया है, मैंने इस दिन पे अंडा डाला है अंदर, दैट मीन्स मैंने इस दिन पे oocyte रिट्रीवल करके फर्टिलाइज करवा दिया है. आई एम गोना माइनस दिस पीरियड. ठीक है, 14 days में माइनस करूँगी एंड आई एम गोना ऐड इट. सो वी आर गोना ऐड 260 days टू दैट. 280 से मैंने माइनस कर जब 14 days कर दिए तो मेरे पास आ गई. ठीक है, बिकॉज डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ले लिया था मैंने LMP नहीं लिया. For example, there is another couple who do not want to get pregnant right now. There's this celebrity and she wants her eggs to be frozen. अब मैंने उसके 10 साल पहले एग निकाल के फ्रोज कर दिए थे. नाउ शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट आफ्टर 10 years. अब मैं उसका एग निकाल के फ्रॉम द फ्रिज और फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर वेयर इट इज इंक्यूबेटेड एंड स्टोर, आई डोंट केयर राइट नाउ, मैंने वहाँ से निकाल के आई एम गोना इनोकुलेट एंड आई एम गोना फर्टिलाइज इट विद द स्पर्म विद व्हाटएवर. फॉर दैट पर्पज अब डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट इक्वल्स टू द डे ऑफ oocyte रिट्रीवल. जिस दिन मैंने अंडा निकाला था, oocyte निकाला था, उस दिन से इक्वल नहीं है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. इट्स बीन 10 years. सो डज दिस डेट मैटर्स टू मी नाउ? नो, इट डजंट मैटर्स टू मी नाउ. अब फॉर दैट पर्पज आई हैव अनदर मेथड टू कैलकुलेट कि डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जब कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा कि जिस दिन मैंने एग निकाला था उससे कब मैं फर्टिलाइज करवा रही हूँ. आई हैव 2 conditions over here. At the end of the day, I have brains. As a gynae and obs, I do have brains कि भाई जब भी फर्टिलाइज करवाऊंगी ना तो यहाँ नहीं करवा रही बिकॉज अब तो मैटर नहीं करता, मैं इस दिन पे करवाऊंगी जब मेरा इंडोमेट्रियम फीमेल का रेडी हो टू टेक द बेबी. मैं इस दिन पे करवाऊंगी जब शेडिंग हो रही हो, तो फिर मेरी सारी मेहनत बाहर आ जाएगी. तो फॉर दैट पर्पज आई वांट टू रिमेंबर कि इसी टाइम पीरियड में ऐड करवाना है. तो फॉर एग्जांपल इफ शी सेज दैट शी वांट टू डू द डे 3 ट्रांसफर. डे 3 ट्रांसफर मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाओ. डे 3 ट्रांसफर इफ शी सेज दैट मीन्स कि अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो डे 14 अगर डे 1 है तो डे 3 यहाँ का कौन सा होगा, डे 17. तो मैं डे 17 यानी साइकिल के डे 17 पे इंड्यूस करवा रही हूँ और मेरा डे 3 है फर्टिलाइजेशन के बाद. तो यू हैव टू बी हैविंग दिस आइडिया, उसमें आप ऐड कर दोगे 263 days. तो अगर डे 3 ट्रांसफ़र हो रहा है तो 263 days ऐड करना है. इसके पीछे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 days होते हैं. 280 में से 17th माइनस करूँगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने बेबी अंदर डाला है तो ये वाला पीरियड तो एक्स्ट्रा आ गया ना, जैसे पहले वाले में ये वाला पीरियड एक्स्ट्रा आ गया था तो मैंने 14 days माइनस किए थे. यहाँ पे मैं 17 days माइनस करूँगी. आई वुड नो दिस, 263 ऐड कर दूँगी. इफ शी सेज शी वांट टू ट्रांसफर इट ऑन डे 5, डे 5 अगर बोलती है तो यहाँ पे मेरे पास डे कौन सा हो जाएगा, डे 19 हो जाएगा. डे 5 14 फिर इसमें 5 डे ऐड करूँगी तो डे 19 हो जाएगा. दैट मीन्स आई एम गोना माइनस 280 में से 19. ज़्यादा समझ ना भी आए, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, डू नॉट वरी, जस्ट मग अप एंड रिमेंबर दिस. वी आर गोना ऐड द 261 days टू द डेट ऑफ D5 ट्रांसफर. D5 ट्रांसफर का मतलब होता है D19 साइकिल. बस इस डायग्राम को याद रखना, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स करेक्ट, आई होप सो. ये साइकिल समझ आनी चाहिए कि डे 3 डालने का मतलब है कि 14 के बाद डे 3, दैट इज योर डे 17 एक्चुअली साइकिल का. डे 5 इज एक्चुअली द डे 19th ऑफ योर साइकिल. डे 5 इज द डे 5 फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोना कैलकुलेट इन डिफरेंट सिनेरियोज योर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट.